Assalamu alaikum everyone. Today we are here again with another exciting week of Your Rehnumai. Today we have a very interesting topic related to choosing your career. So this week is all about jobs, career, and to start that the right way, we need to figure out how and what way in what ways we should be looking at our careers. Not it doesn't mean that so our session is not just for the high schoolers or people who are doing their bachelors. We are This is also for people जो bachelors के बाद अपनी career की direction जो है उसमें सोच रहे होते हैं कि हमने क्या करना है. And एक even if you're a doctor, even if you graduate with an MBBS, there are still a number of ways in which you can direct your career. And if you've done your BBA, and then again you have a lot of arenas where you can go and change the direction of your career. Some people just study English literature, and instead of writing, they go for CSS. And some people just become writers after that because that's what they've studied. And so you can, finding out what you want to do with your degree or what you want to do at the stage or where you're choosing your degree is very important. And that's why we have Zanfar Iqbal with us. So we are going to wait till we have enough viewers with us to start the official um, talk or the formal आपको हम बताएंगे चीज़ें. So we're going to wait for a few minutes till we have enough viewership, and we have people who can engage with us. Just a few minutes. गिविंग यू मैं आपको साथ साथ गजनफर अस्सलाम वालेकुम गजनफर का वालेकुम एक सलाम। छोटा सा आपको एक इंट्रोडक्शन दे देती हूँ. ही इज़ राइट नाउ वर्किंग एज अ कंट्री हेड कॉर्पोरेट सेल्स मैनेजर at Kareem. He has worked in this corporate sector or entrepreneur sector for about 12 years. He has worked with Jazz, Telenor, and many other companies. He has his own a startup called Auto Sahulat, and he's also at YouTube. Can you tell us the name of that channel that you're working on at YouTube? It's Skills Pro. We Skills use Pro. it And Yalo. yeah, I've seen it, and he has some amazing video on entrepreneurship. And if you're looking to be in that sector, then what are the things that you can do and what are the things you can't do. So he has some great tips over there. Apart from that, with his vast experience, I would like to ask him to share with his experience throughout these years, how he has evolved, how he has find the right ways to go towards his career. उन्होंने किस तरह से चीज़ें की और किस तरह से उन्होंने सोचा कि मुझे ऐसी करनी चाहिए वैसी नहीं करनी चाहिए, और किस तरह से उन्होंने अपने कैरियर को आज जो परवाज दी है वो क्या क्या है. और let's just ask him what share his experience, what he has done so on. Thank you so much. Assalamu alaikum, everybody. First of all, thank you to Renomai for inviting me over on this platform. And I think it's a great initiative talking about career and the whole week of professionalism, bringing in these experienced guests. And kudos to all the team. As far as my introduction goes, so अच्छा summarize कर ली है Rabel ने. But a little bit about myself in a sense that I worked in the corporate sector for over 10 years, and I was part of Telenor, और वहाँ पे एक entrepreneurial program होता था Ignite, which was essentially जहाँ पे employees अपने ideas के साथ they used to come up, and if that idea is selected, then you go on a 3 month incubation program. So with a couple of my colleagues, I was selected in batch three. We came up with this idea of on-demand mechanic platform, and for 3 months we were incubated in different offices of Telenor in Oslo, Bangkok, and Singapore. Afterwards, I got an opportunity to join a founders program in a company called Antler, which is based in Singapore, and through that I actually raised VC funding to start my own company. In comparison to the corporate sector and the startup side, I think startup in there you get to learn a lot. There are a lot of hats that you have to do. It's not just if I was part of Telenor as a salesperson,
तो startup के अंदर I was doing sales, I was doing marketing, I was contacting people in the legal side to register the company, I was talking to investors to raise more funds, I was talking to real estate people to manage my office. So there are a lot of hats that you keep wearing and you learn a lot. So startup definitely was an exciting time for me, and later, due to unforeseen circumstances, we had to shut down. And then I got the opportunity to join Kareem. Kareem doesn't have anything to say about Kareem in a sense that everybody knows about Kareem. It's a Middle Eastern, North African unicorn which was acquired by Uber last year. I joined as a sales manager in Punjab and recently got promoted as a country head, managing the corporate sales across Pakistan. Amazing. So, what I would like to ask you is, you shared your experience, and you know how when you graduated, there was a different job market thing. And when I graduated, when my fellows graduated, या मेरे से जो juniors हैं या मेरे seniors, when they graduate, they see a different market. So, what are your advice on looking at the market? किस तरह market को देखना चाहिए? So, good question. I think a little bit context set करने की यहाँ पे ज़रूरत है. So, if talk about my generation or for that matter my parents' generation, तो हम लोग एक 3-step plan के ऊपर चलते थे और वो 3-step plan ये था कि सबसे पहले you graduate from a good college and then you find a job in a good company and then you work in that company for rest of your professional life, probably 30-40 years. और that's about it. आपकी success as a career यहाँ तक खत्म हो जाती. But now, if you go on LinkedIn right now and you start browsing through different profiles, you will see people working in different companies. 2 से 3 साल एक role में एक company में, then they switch to a different company. So now the whole concept of associating yourself with just one company is sort of diminishing. अब ये चीज खत्म होती जा रही है. Yes, थोड़ा बहुत अभी भी है कि you are stuck with just one company for the rest of your professional career. But most people, or even if I am going to hire somebody, I am going to prefer that person कि उसने 3-4 companies के अंदर अगर काम किया हुआ है तो उसका exposure, उसकी learning would be far superior than a person that has been associated with just one company. और ऐसा क्यों है? और ऐसा इसलिए है कि जब आप एक कंपनी में काम कर रहे हैं तो आपका माइंडसेट, आपका वर्क कल्चर उस कंपनी से ही एसोसिएट होता है. यस, देयर इज इंटरनेट, आप अपने दोस्तों से मिल रहे हैं, आप डिफरेंट अपने लोगों से मिल रहे हैं जो डिफरेंट कंपनी में काम कर रहे हैं, बट फ्रॉम 9 to 5 या जो भी आपकी टाइमिंग है, आप एक कंपनी एक सर्टेन इंडस्ट्री से एसोसिएटेड हैं तो आप उसके तो जरूर एक्सपर्ट होंगे. लेकिन प्रोफेशनल एक्सपोजर की अगर बात की जाए, अगर एक बंदे ने 3 से 4 कंपनी में काम किया तो आई बिलीव उसका प्रोफेशनल एक्सपोजर ज्यादा होगा. So that is some sort of a paradigm shift that is happening that we can experience right now in terms of the career. जहाँ पे if you are going for a career, अगर आपने जल्दी grow करना है, ज़्यादा learn करना है, तो I would suggest try to work in different roles in different companies. अगर आपको opportunity नहीं मिल रही किसी और कंपनी में जाने की, तो जिस कंपनी में आप हैं तो वहां पे अपने रोल्स को चेंज करने की कोशिश करें, डिफरेंट रोल्स में काम करना शुरू करें. दैट विल हेल्प यू प्रोफेशनली ग्रो मच बेटर. सही है. अच्छा, एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है एंड इट्स वेरी रेलिवेंट टू द सिचुएशन दैट्स राइट नाउ. व्हेन आई टॉक टू माय फ्रेंड्स who are in engineering and told them you are coming as a speaker, they asked me a question and it was very relevant. They asked me that companies these days, because of the COVID-19, are downsizing. So what does like इससे क्या होगा, इससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उनकी जॉब सीकिंग पे, और वो जो लोग जॉब्स कर रहे हैं उनको, like do they need to be worried, or do they just need to get updated and need to think out of the box? I think COVID का definitely impact है. There are a lot of companies out there जो कि layoff वगैरह भी कर रही हैं, उनके revenues भी hit हो रहे हैं. But again, this is also an opportunity to outgrow. Take this as a positive side, not a negative side. कि you can एक चीज होती है learn and then unlearn and learn again, right? So आप सीखते हैं और फिर आप कुछ और सीखते हैं और अपने आप को उस हिसाब से चेंज करते हैं. तो स्किल्स की बात हो रही है. You need more skills to make yourself relevant in this time period. अगर मैं बात करूँ software engineering की, so software engineering is still here, right?
a lot of companies are hiring. If I talk about Food Panda, delivery के अंदर वो लोग काम कर रहे हैं. They are doing a lot of expansion because इस वक्त लोगों का focus है कि घर पे बैठ के delivery वगैरह कराएं. तो that company is hiring. There are a lot of companies out there. Zoom की बात कर लें या इस तरह से जिस तरह से हम इस StreamYard platform के साथ बैठे हुए हैं. तो these companies are growing. तो आप इन companies के अंदर जा सकते हैं. अगर मैं अपनी बात करूं कि सेल्स का मैं बंदा हूँ प्राइमरली कि कॉर्पोरेट सेल्स के अंदर हूँ, तो मेरा कोविड के अंदर क्या फ्यूचर है. देयर आर लॉट ऑफ कंपनीज आउट देयर जो ये प्लेटफॉर्म कॉर्पोरेट को सेल कर रहे हैं, तो यू कैन ज्वाइन दीज कंपनीज एज वेल. तो रादर देन सिटिंग कि जी कंपनीज ले ऑफ कर रही हैं और अपॉर्चुनिटीज कम हो रही है, आई थिंक दिस कैन बी ट्रीटेड एज एन अपॉर्चुनिटी जहाँ पे देयर आर कंपनीज दैट आर ग्रोइंग एज वेल. स्लैक जो है उसके अंदर काफी बूम आया है और वो काफी ज्यादा ग्रो कर रही है. तो आपने सिर्फ ये देखना है कि कौन सा स्किल सेट इस वक्त इन डिमांड है. और अगर इफ यू आर यंग, इफ यू जस्ट जॉइन द कंपनी, यू जस्ट ग्रेजुएटेड और यू आर इन योर अर्ली प्रोफेशनल ईयर्स, सो इट्स इजी टू लर्न न्यू स्किल्स and apply them as well. That is if you want to associate yourself with a job sector. But then there is an entrepreneurial mindset out there as well, right? What are you good at? तो अगर मैं बात करूं कि पैशन की, फॉलो योर पैशन. हर एज के अंदर हमारा एक पैशन होता है, हमारे कुछ इंटरेस्ट होते हैं और हमारी पर्सनैलिटी भी उस हिसाब से चल रही होती है. कुछ लोग होते हैं जो फीडबैक देना चाहते हैं, कुछ लोग होते हैं जो कोच करते होते हैं, नेचुरली उनको ये चीज आ रही होती है. So those people are good in human resources. Those people can become good trainers, right? Then there are people who are very social. They build up relationships. So those people can be good in partnerships. Those people can be good in sales and business development. So that is the thing. Find your personality in terms of कि आप किस किस्म के strengths अपने अंदर रखते हैं और उन strengths को follow through करके आप job भी हासिल कर सकते हैं और आप अपना कोई सेटअप भी स्टार्ट कर सकते हैं. फिर देन देयर इज अ प्लेटफॉर्म कॉल्ड फाइवर, राइट? फाइवर के ऊपर फ्रीलांसर्स पाकिस्तानी बहुत ज्यादा हैं. सो यू कैन लर्न द स्किल्स एंड यू कैन स्टार्ट सेलिंग योरसेल्फ आउट देयर एज वेल. बिकम एन एंटरप्रेन्योर. यू डोंट नीड अ जॉब. और जितना अर्ली आप इस चीज में स्टार्ट करेंगे उतना ज्यादा आप लर्न करेंगे. सो गज़नफर, सो बेसिकली द थिंग इज़ कि चूंकि अब अगर दुनिया बदल रही है तो हमें जॉब्स बदल रही हैं और हमें बस वो राइट स्किल्स ढूंढने टू मैच द मार्केट. तो in a conclusion, अच्छा, let's talk about कि when you're at the stage of setting of you know, आप जब सोच रहे होते कि मैंने बड़े क्या बनना है. ये तो बचपन से हमसे सवाल किया जाता है कि अपने बड़े होकर क्या बनना है, लेकिन एक हम जब सोचना स्टार्ट करते हैं हमें क्या बनना है, तो what do you think कि कैरियर चूज करने में या डिग्री चूज करने में ये बात का ध्यान रखना कि एनवायरनमेंट में, किस एनवायरनमेंट में जॉब करूँगा, क्या वो जॉब मेरे लाइफस्टाइल से मैच करेगी, मैंने कहाँ जॉब करनी है, ये वाली सोचें कितनी मैटर करती हैं? क्या ये सोचना चाहिए भी कि लोग नहीं सोचते हैं? नहीं, डेफिनेटली सोचना चाहिए. अगेन दो तरह के लोग होते हैं, इंट्रोवर्ट्स एंड एक्सट्रोवर्ट्स. सो इंट्रोवर्ट्स आर मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स के इतने ज़्यादा वो लोग सोशल नहीं होते. आई थिंक अगर आपकी इस तरह की पर्सनैलिटी है तो यू कैन गेट इनटू समथिंग where there is less of interaction with other people. आप रिसर्च के अंदर आ सकते हैं, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और प्रोग्रामिंग के अंदर आ सकते हैं, because that is what you are as a person. And then there are extrovert people who like to go out, and there are people like that जो कि ज़्यादातर मेरी तरह की फील्ड के अंदर होते हैं, जो ऑफिस के अंदर बैठ नहीं सकते, जो बाहर जाके लोगों के साथ इंटरेक्ट करना चाह रहे हैं, यू नो, पब्लिक इंटरेक्शन वाली फील्ड में जाना चाह रहे हैं. तो पर्सनैलिटी इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट उस हिसाब से आपके जो है कैरियर के साथ वो एसोसिएशन होती है. बट यहाँ पे ये भी मैं बता दूं कि when I started, I had no clue that I am a person who is extrovert, right? I thought that I'm an introvert person. And then customer services से मैंने start किया, लेकिन by chance I got into sales. And I realized that I'm a person that is good in selling products to other people. And that became my comfort zone. So I sort of transitioned from an introvert person to an extrovert person. So time ke saath you grow, you mature, and you change as a person as well. तो उसके हिसाब से आपको अपने आप को देखना चाहिए कि इस वक्त क्या चीज या क्या कैरियर या क्या कंपनी जो है उसके साथ एसोसिएशन करके मैं बेहतर ग्रो कर सकूंगा. So it's always revisiting yourself and trying to figure out what you want to do right now, and it keeps on changing with your life.
ठीक है. देन फिर एज यू टॉक्ड अबाउट इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट, मेरे दिमाग में क्या है कि एक दो और टाइप्स भी होती हैं. एक वो जो होती हैं जो एंटरप्रेन्योर होते हैं, रिस्क टेकर्स होते हैं, और एक होते हैं जो एक जॉब में रखते हैं. तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे इन दो टाइप्स के बारे हाँ, में, एंड व्हाट डू यू? definitely. In terms of these two kind of traits, yes, there are people out there that want security in their life. And जिस तरह से मैंने पहले बात की कि associating yourself with just one company throughout your professional career. So I think these people fall in that category जहाँ पे आप एक जॉब सिक्योरिटी चाह रहे हैं. So let's talk about government sector, right? हम लोग कहते हैं गवर्नमेंट की जॉब काफी लोग उसके अंदर इंटरेस्टेड होते हैं और उसके अंदर इंटरेस्टेड इसलिए होते हैं कि गवर्नमेंट जॉब में रिस्क कोई नहीं होता. वंस यू गेट हायर्ड, so there are very few chances कि you get laid off, you get fired. You continue on that path as well. But उस path के अंदर I personally believe कि growth इतनी ज़्यादा नहीं होती. When it comes to risk, obviously higher the risk, higher the return. That is where the entrepreneurial mindset comes into play. जहाँ पे you want to grow, you want to switch, आप और चीजें सीखना चाह रहे हैं, आप आराम से नहीं बैठ सकते. सो आई थिंक ये दोनों ट्रेड्स अवेलेबल होती हैं हर तरह के इंसान के अंदर. लेकिन आप अपने आप को देखें कि आप किस तरह की जगह के ऊपर अपने आप को ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं, तो उस तरह की फील्ड चूज करें. जहां तक रिस्क टेकर की बात है, तो आई हैव टेकन दैट रिस्क. आई लेफ्ट माय कॉर्पोरेट जॉब, a good paying job in Telenor, to start on that entrepreneurial mindset where I was founding a startup. और मुझे उस वक्त कोई आइडिया नहीं था कि मैं उसके लिए कोई फंड रेज कर सकूंगा. सो दैट वाज अ रिस्क दैट आई टुक. अगर वो फंडिंग ना रेज होती तो फिर क्या होता, right? And then I have a family, right? I have a wife, I have children, I have certain responsibilities that are sort of associated with me, and उनका भी मैंने ध्यान करना है. तो आप उस हिसाब से भी सोच रहे होते हैं कि अगर मैं ये स्टेप लूँ तो इसका उन लोगों के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा. ऑब्वियसली जो पेरेंट्स आर देयर आर सर्टेन पीपल यू आर रिस्पॉन्सिबल टूवर्ड्स. तो रिस्क टेकिंग के अंदर ये चीज भी आ जाती है, बट इट पेज ऑफ. अगर कुछ नहीं भी मिलता ना, दैट एक्सपीरियंस दैट यू टेक फ्रॉम टेकिंग दैट रिस्क, उससे आप इतना कुछ सीखते हैं कि उसके बाद आपके लिए कोई ना कोई और अपॉर्चुनिटी जरूर निकल आती है. तो देयर हैज बीन टाइम जहाँ पे मैं 100 के ऊपर पहुंचा और एकदम से 0 के ऊपर भी आ गया. और वहां पे डेफिनेटली एक स्ट्रेस लेवल आपका और तरह का होता है. दे आर पीपल दैट टेल यू that told you so. You should have stuck with that safe job that you had. You should not have experimented that much. But I, from my experience, believe that you should experiment. जितना ज़्यादा आप एक्सपेरिमेंट अच्छा. करेंगे उतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज आपके लिए अवेलेबल होंगी. अगर हम बात करें सिर्फ एंटलर वाले फाउंडर प्रोग्राम की, जिसके अंदर आई गॉट सिलेक्टेड, तो आई गॉट टू मीट लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड. और उनके साथ एक नेटवर्क मेरा क्रिएट हुआ जिसके थ्रू बहुत सी अपॉर्चुनिटीज और लोगों के लिए भी निकली और मेरे लिए भी निकली. तो So डेफिनेटली दीज टू ट्रेड्स आर basically, आउट देयर. So basically, Gazanfar, what you suggest is for people is to get out there, get as much experience as they can, meet people, get exposure, apply abroad, maybe like you did, you applied abroad, you get out of the country, meet people, and आपको पता चलता है कि दुनिया में लोग क्या कर रहे हैं, and you find out कि क्या trends चल रहे हैं. अच्छा, Gazanfar, एग्जैक्टली. as we talk about being an entrepreneur, कुछ लोग कई लोग होते हैं जो कामयाब हो जाते हैं. दे हैव they have a business idea. I'm not going to say it's a great business idea. Every business idea है. कुछ लोग कामयाब नहीं हो पाते. तो अगर कोई भी बंदा हो और वो सोच रहा हो कि उसने कोई बिजनेस करना है, तो व्हाट वुड बी योर 3 टिप्स कि यार मतलब ये चीजें तुमने देखनी है, ध्यान में रखनी है, एंड देन यू कैन गो फॉर इट, क्योंकि आई थिंक सब. it's जी बिल्कुल. There are studies out there and statistics out there that say that 90% of the startups or 90% of the ideas usually fail. So हम लोग सक्सेस के ऊपर तो बहुत ज़्यादा डिस्कशन करते हैं कि इतने सारे फाउंडर्स जो हैं वो सक्सेसफुल हुए, लेकिन हम बहुत बड़ी एक मेजॉरिटी को निगलेक्ट भी कर रहे होते हैं जिन्होंने कोई चीज़ ट्राई की लेकिन वो फेल हो गए. बट फेल होना इज नॉट अ बैड थिंग. फेल is an experience.
एक कॉन्फ्रेंस के ऊपर मैं सिंगापुर में फेसबुक में गया था, पहली दफा आई मेट पीपल इन फेसबुक एंड दे एक्चुअली सेलिब्रेट फेलियर्स। और मेरा एक कॉन्सेप्ट टोटली चेंज हो गया, क्योंकि उससे पहले मेरा एक माइंडसेट था कि फेलिंग इज अ बैड थिंग, बट दे एक्चुअली लर्न फ्रॉम दैट फेलियर कि जी अच्छा ये हमने स्टेप्स लिए और इन स्टेप्स के अंदर ये चीजें गलत हुई, तो अब हमने किस तरह से इसको रिट्रैक करना है। तो उस चीज से ना डरे, यू शुड गो आउट देयर। द थ्री स्टेप्स दैट यू शुड टेक बिफोर लॉन्चिंग एन आइडिया, फर्स्ट ऑफ ऑल इज आर यू पैशनेट अबाउट इट। ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप इस चीज को कितना अर्सा लेके चल सकते हैं। अगर आप उसके बारे में पैशनेट नहीं है, अगर आपने देखा कि 3-4 महीने के बाद यू गेट बोर्ड आउट ऑफ इट, देन probably not go for it. So the idea, the business model that you are trying to work on, it should be something close to your heart. तभी आप उसको लेके चल सकते हैं. Second most important thing is your co-founder or your team जिसके साथ initially आप काम करेंगे. I believe कि एक बंदा, a solo founder cannot build up the whole company. कहीं ना कहीं आपको टीम की जरूरत होती है. Team can be your co-founder, team can be 2 to 3 people that join you initially, or team can be even your best friend or your wife. But अकेला बंदा कुछ नहीं कर सकता. You always need a team. So that team, that co-founder that is going to be working with you, आपका और उसका एक क्लोज बॉन्ड होना चाहिए, बिकॉज आपने दिन रात लगाना है इस आइडिया के ऊपर. यू आर गोइंग टू वर्क लॉट ऑन इट. इट इज नॉट गोइंग टू बी अ नॉर्मल जॉब और अ नॉर्मल कैरियर. So are you willing to take that risk in terms of finding your passion, finding the right co-founder? ये दो चीजें हो गई. और तीसरी चीज ये हो गई कि you will get a lot of ideas, lot of suggestions from everybody out there कि यार इस तरह से कर लो, इसको इस तरह से देखो, इसको इस तरह से कर लो. और कई दफा ऐसे होता है, it becomes so overwhelming inside the brain that you start to confuse yourself कि यार मैं किस साइड पे डायरेक्शन लूं. So listen to people, but take your own decision. And if decision doesn't work out, again, it's an experience. Take a step back, rethink, and start again. I think these 3 steps are important before you start any ठीक है. business model. सही. हमने अभी बात कर ली एंटरप्रेन्योरशिप की कि किस तरह करना है. तो लेट्स टॉक अबाउट दोज जॉब्स दैट दैट आर जब आपने वो एक आपकी लॉन्ग टर्म जॉब होती है, दैट आप किसी एम्प्लॉय होके आप काम कर रहे होते हो. तो उस बीइंग एन एम्प्लॉय, लेट्स टॉक अबाउट कैरियर के चूज करते वक्त मजीद और कौन सी चीज़ें होंगी. व्हाट आर योर पॉइंटर्स कि ये चीज़ें आपने जहन में रखनी है व्हाइल यू आर लुकिंग व्हाट जॉब और व्हाट कैरियर यू शुड बी डूइंग. आई थिंक उसके अंदर एक जो चीज इम्पोर्टेंट होती है वो होती है इन टर्म्स ऑफ जहाँ पे अभी आप जाना चाह रहे हैं, जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, वहाँ पे आपके सीनियर्स उस पोजीशन में किस तरह का लाइफस्टाइल मेंटेन कर रहे हैं. राइट. सो लाइफस्टाइल से मेरी मुराद ये है कि क्या सैलरी है उनकी, कितना ट्रैवल इन्वॉल्व है उनकी लाइफ के अंदर, उनका अपने टाइम के ऊपर, स्पेशली अपने पर्सनल टाइम के ऊपर कितना कंट्रोल है. And are they essentially looking happy? Are they looking satisfied? And if that is somebody you want to be in a couple of years, आप क्या ऐसा लाइफस्टाइल अपनी जिंदगी में चाह रहे हैं? So that is something that is very important for to look at when you join any company. Look at your seniors, where they are, and are they satisfied with that role, that position, that company? If they are, according to you, yes, then you move towards it. You aim के ये steps मैंने लेके इस तरह से grow करके इस position तक पहुंचना है. But if that's something you cannot connect with personally, yeah, this is not the lifestyle I want to maintain, right? So probably then you have to look outside that company to find something else. इसमें मैं example ये दूंगा कि banks हैं, right? Lot of people work in banking career. It's a 9 to 5 job जिसमें आपने टाई लगा के जाना है, ठीक है, and you have to put on the thumb. So put on the thumb in the evening. So there are certain rules. There is a certain attire to it. A lot of people love it, but a lot of people don't love it as well, right? So if you are that kind of a person who cannot connect with that sort of a lifestyle, the banking lifestyle, then obviously banks are not something that you should look forward to. You should probably look forward to something else. So lifestyle is very important. इसके अंदर जो points हैं मैंने आपको बताया, इनके ऊपर अगर आप थोड़ा सा फोकस करके देखें, तो that can help you find the relevant company. फिर I think another important thing is कि
where do you want to live, अगर आप पाकिस्तान में रहना चाहते हैं या आप अब्रॉड जाना चाहते हैं, उस हिसाब से अपनी कैरियर ट्रेजेक्टरी प्लान करें. एंड इफ यू टॉक अबाउट, लेट्स टॉक अबाउट फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में भी where do you want to settle, in a metropolitan area जहाँ पे अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं, एक different cultural attractions हैं where you can go out in the evening, you know, with your friends, या फिर आप एक क्वाइट रूरल सेटिंग के अंदर रहना चाहते हैं, एक छोटे शहर में रहना चाहते हैं. तो ये चीज भी मैटर करती है आपकी कि आप किस तरह से इस चीज को लेके जाना चाहते हैं. देयर आर लॉट ऑफ कंपनीज इन एफएमसीजी जो कि छोटे शहरों के अंदर उनके लोग काम कर रहे होते हैं, एंड पीपल लव लिविंग इन स्मॉल सिटीज एज वेल. वो कहते हैं कि यार हमने कराची नहीं जाना या लाहौर नहीं जाना, लाइफ इज टू फास्ट ओवर देयर. सो इफ यू आर दैट काइंड ऑफ अ पर्सन, देन प्रॉब्ली लुक टुवर्ड्स दैट कंपनी जिनके ऑपरेशंस छोटे शहरों के अंदर हैं और वहां पे आप अपने आप को कंफर्टेबल देख सकते हैं. अगर आप हसल बसल टाइप एनवायरनमेंट के अंदर ज्यादा अपने आप को कंफर्टेबल फील करते हैं, देन यू कैन लुक टुवर्ड्स द मेट्रोपॉलिटन एरिया. बट यहाँ पे एक और चैलेंज ये आ जाता है कि अपॉर्चुनिटीज ऑब्वियसली मेट्रोपॉलिटन एरियाज में ज्यादा मिलेंगी आपको, छोटे शहरों में वो अपॉर्चुनिटीज शायद आपको कम मिलेंगी. तो फिर आपने ये चीज प्रायोरिटाइज करनी है कि मैं प्रोफेशनली ग्रो करना चाहता हूँ और ज्यादा सीखना चाहता हूँ, या मैं सुकून की जिंदगी रहना चाहता हूँ. अगेन दीज आर सम थिंग्स दैट you have to think for yourself. I can only sort of share my experience in that term कि मेरे लिए क्या प्रायोरिटी थी और मैंने उस हिसाब से क्या चूज किया. सही बिल्कुल. तो सो राइट, मतलब मैं सोचती हूँ कि इधर आई वांट टू लिव इन अ ब्यूटीफुल सिटी ना, मतलब मैं काम से थकी हूँ तो आई लुक एट द ट्रीज इस्लामाबाद, लाइक मुझे ग्रीनरी देखनी है. तो एवरीवन हैज शुड यू नो लुक कि आप एक लाइफस्टाइल 30 इयर्स बाद, 40 ईयर बाद, व्हेन यू या 20 या 10 इयर्स बाद जब आप जॉब कर रहे हो तो आप क्या जो है वो लाइफस्टाइल अपना देख रहे हो. एंड अगेन यू टॉक्ड अबाउट एनवायरनमेंट कि आपका एनवायरनमेंट कैसा हो. अगर आप बैंकिंग में हो तो आप डू यू वांट टू वियर अ टाई एवरी डे टू वर्क और नॉट, और डू यू वांट टू जस्ट यू नो कैजुअली आप टी शर्ट के अंदर अपना काम करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं. So far we have put up with all of the career points. Any other points that you have in your mind, Gazanfar, that you would want our audience to know कि भाई कैसे जॉब लेना है, career अपना pursue करना है. For what are your recommendations to the people who just graduate? Should they कुछ लोग होते हैं जो कि internships करते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि अगर internship paid नहीं है तो मैं नहीं करूँगा. ऐसे भी कुछ mentalities होती है लोगों के पास. या कुछ ऐसे लोग होते हैं जो like when do you stop working unpaid and when do you start looking for jobs that would pay you? Like इस पे आप क्या कहेंगे graduate होने वाले बच्चों को? I think personally I believe कि internships are important. अगर आपको internship की opportunity मिल रही है जिसमें आप they are not paying you anything as well, still अगर you are young graduate, अभी आप graduate किए हैं या आप in process हैं अपनी डिग्री लेने के और आपको internship की opportunity मिली है, तो you should definitely go for it. बिकॉज आप एक प्रोफेशनल एनवायरनमेंट के अंदर काम करते हैं और आपको आइडिया होता है कि एक प्रोफेशनल एनवायरनमेंट के अंदर किस तरह से काम होता है, क्या एसओपी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स फॉलो हो रहे होते हैं, किस तरह का कल्चर होता है, और आप उसमें उस कल्चर के अंदर या उस इंडस्ट्री के अंदर मूविंग फॉरवर्ड एक परमानेंट जॉब के साथ एडजस्ट हो भी पाएंगे या नहीं हो पाएंगे. सो इंटर्नशिप डेफिनेटली करनी भी चाहिए एंड इट हेल्प्स विद योर प्रोफाइल एज वेल. जब आप कैरियर की बात करते हैं तो आपकी एक सर्टेन सीवी होती है, राइट. आपने एक अपनी सीवी बिल्डअप करनी है थ्रू आउट योर प्रोफेशनल कैरियर, और उसके अंदर स्टेजेस आती हैं जिसके अंदर आपको सर्टेन टिक मार्क्स चाहिए. अगर वो टिक मार्क्स आप लेंगे तो वो टिक मार्क्स आपके प्रोफेशनल कैरियर में काफी हेल्प करेंगे. आई थिंक इंटर्नशिप इज दैट सॉर्ट ऑफ टिक मार्क दैट इज रिक्वायर्ड. सेकेंडली, इंटर्नशिप का ये भी फायदा होता है कि आपकी नेटवर्किंग होती है, आपके कनेक्शंस बिल्डअप होते हैं. अगर आप समझते हैं कि जी मैं अभी वेट कर रहा हूँ, आई विल ओनली अप्लाई फॉर पेड जॉब, जब वो मिलेगी मैं वो करूंगा, तो वो टाइम जो है आपका, आई थिंक वो टाइम वेस्ट हो रहा है. रादर देन वेस्टिंग दैट टाइम, go for that particular opportunity. Probably उसी opportunity के अंदर आपको परमानेंट पोजीशन ऑफर हो जाए बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस. कई दफा ऐसे भी होता है, या वहां पे आपके इस तरह के प्रोफेशनल कनेक्शंस बन जाएं जो आपको डिफरेंट कंपनीज के अंदर एटलीस्ट इंटरव्यू वगैरह तक थ्रू पुट करवा दें. बिकॉज इट इज जस्ट नॉट के जी आई एम गोइंग टू अप्लाई एंड आई एम गोइंग टू गेट दैट जॉब. इट इज मोर देन दैट. अब कंपटीशन पहले की तरह नहीं रहा. देयर आर lot of jobs, yes, but there are a lot of people out there that are
very very skillful. So competition is fierce. आपको इस hard competitive edge के अंदर अपने आप को build up करना है, एक अपना profile build up करना है. तो उसके लिए जो भी आपको ammunition चाहिए वो आपको लेने की जरूरत है, और internship is one of that tool that is required out there to help you get that permanent spot that you are gunning for at that point. अच्छा, well, फिर let's talk about something else. I'm sure, अच्छा, जिस तरह हमने इंटर्नशिप्स की बात की, एक और जो आपके करियर बिल्ड में आपको हेल्प कर रहा होता है, आज जो MOCs होते हैं, do companies prefer people who get their skills, मतलब जो skills वाले सर्टिफिकेट्स होते हैं from a university, मतलब जाके उन्होंने सीखा हो, या do they also prefer these days के उन्होंने MOC पे कोई कोई किया हो, कोई कोर्स किया हो, तो कोई इनके कोई स्टैंडर्ड का डिफरेंस है, या मतलब एज अ पर्सन हु वुड हायर समवन, इस नज़र से मैं आपसे सवाल कर रही हूँ. आई थिंक अभी करंट टाइम्स के अंदर यस इन चीज़ों का बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है, एंड पोस्ट कोविड आई थिंक काफ़ी लोग लॉकडाउन के अंदर हैं, और अपना स्किल अगर आप बढ़ाना चाह रहे हैं, ऑब्वियसली यू कैन नॉट गो टू यूनिवर्सिटीज और यू कैन गो टू डिफरेंट इंस्टीट्यूशन टू गेट दोस सर्टिफिकेशन, यू हैव टू get them online, right? So people understand that. But if I talk about big tech companies like Google, Facebook, Amazon, Apple, yeah, Microsoft for that matter, so they ask you not for your degree. अगर आप उनकी जॉब देखें, डिग्री है, यस, अगर डिग्री नहीं है तो उसके इक्विवेलेंट अगर आपका एक्सपीरियंस है तो उस एक्सपीरियंस के ऊपर भी आपकी हायरिंग हो जाती है. सो ऑब्वियसली अगर उस डिग्री की जगह आपके पास कुछ सर्टेन सर्टिफिकेशन हैं कोर्सेरा से, उडेमी से, those are going to definitely come in handy, और वो आपकी definitely help करेंगी. Companies like Careem for that matter, अगर आपके पास right skill set है और Coursera से आपने certification की है, that was my interest, especially in software engineering, right? आपको programming आनी चाहिए. अगर आपको प्रोग्रामिंग आती है और आपको इंग्लिश भी बोलनी आती है, या आपको ये नहीं पता कि लोगों के साथ किस तरह से मैंने इंटरेक्ट करना है, दैट डजंट मैटर. अगर आप लैपटॉप पे बैठ के प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, तो दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड फ्रॉम यू, राइट? सो और वो प्रोग्रामिंग अगर आपने ऑनलाइन कोर्सेरा के किसी नैनो डिग्री करके या कुछ सर्टिफिकेशन करके सीखी है, तो इससे कोई मसला नहीं पड़ता. एज लॉन्ग एज यू कैन डिलीवर, यू आर फाइन विद इट. थोड़ा सा ओल्ड स्कूल कंपनीज के अंदर अभी भी ये माइंडसेट है कि डिग्रीज आर इम्पोर्टेंट. यस, डिग्रीज आर इम्पोर्टेंट, बट डिग्री के बाद आगे क्या देखना है आपने इन टर्म्स ऑफ अपने स्किल सेट को बढ़ाने के लिए. तो डिग्री करके भी अगर आप ये स्किल सेट ले रहे हैं, आई एक्चुअली डिड अ डिजिटल मार्केटिंग डिग्री फ्रॉम Coursera as well when I was in Telenor, and it helped me understand डिजिटल मार्केटिंग का क्या पूरा का पूरा सिस्टम होता है, किस तरह से डिजिटल मार्केटिंग करती है, कन्वेंशनल मार्केटिंग से किस तरह से डिफरेंट होती है, एंड इट हेल्प मी इन माय करियर एज वेल. तो इस तरह के कोर्सेज डेफिनेटली करें, दे विल डेफिनेटली हेल्प यू. अगर कोई और आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही डिग्री की, या आपकी डिग्री आपको लगता है कि इज नॉट इनफ, इस तरह की चीजें, अगेन दीज आर डिफरेंट एक्स्ट्रा टूल्स दैट हेल्प यू बिल्ड अप योर प्रोफाइल. ठीक हो गया. एक और यहाँ पर भी मेरे जहन में आज एक बात आ रही है, बिकॉज आई एम अ स्टूडेंट एज वेल. हाउ डज कम्युनिटी सर्विस और वॉलंटियरिंग फॉर, बिकॉज एक आई नो दिस कि CSR का एक डिपार्टमेंट होता है कम्युनिटी सर्विस सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का. तो जो बिगर कंपनीज होती है मल्टीनेशनल, हाउ डू दे think of students who have some volunteering experience in their profiles? CSR is a very important element. I believe अगर CSR की साइड के ऊपर आपने कोई वॉलंटियरी वर्क किया हुआ है, तो डेफिनेटली उसको अपने प्रोफाइल के अंदर भी मेंशन करें, और वो चीज़ आपको फायदा भी देगी. अगेन, एवरीथिंग दैट यू डू इन योर लाइफ इज टू आउटग्रो योरसेल्फ. Whether it is doing an internship, whether it is doing a Coursera course, whether it is doing some sort of a volunteering work, ये सारी चीजें जो हैं, आई थिंक ये आपको हेल्प ही करेंगी, इनका आपको कोई नुकसान नहीं होने वाला. अगेन, वॉलंटरी वर्क जो है उसके थ्रू CSR के इनिशिएटिव्स होते हैं, और CSR का एक प्रॉपर डिपार्टमेंट होता है जहाँ पे आप उस एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं, या उन लोगों के साथ सर्टेन इनिशिएटिव्स के अंदर हेल्प कर सकते हैं. और अगेन, अगर जब आप वॉलंटरी वर्क कर रहे हैं तो फिर आपके लिए फेलोशिप्स की काफी अपॉर्चुनिटीज खुल जाती हैं. आप डिफरेंट किस्म की फेलोशिप्स कर सकते हैं, और आप उन फेलोशिप्स के थ्रू अपने प्रोफाइल को फर्दर बिल्डअप कर सकते हैं, और उन फेलोशिप्स थ्रू और वॉलंटरी वर्क के थ्रू फिर अगेन आपका नेटवर्क ग्रो कर रहा है.
और नेटवर्क जो है एट द एंड मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपके जानने वाले लोग हर जगह पे बैठे हुए हैं that can really help you out with finding the right job. If you want to switch, you can easily switch. If you want any sort of feedback, any sort of help, any sort of support, that network can definitely help you out in that as well. और यहाँ पे यही बात आ जाती है कि working with a single company again, in my opinion, वो आपको जितना मर्जी सिखा दे बट वो उसी एक टनल विजन के साथ एक लिमिटेड अप्रोच के साथ उसी कंपनी से रिलेटेड ही आपको सिखा रही हो मेरी दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन लेकिन आपका नेटवर्क भी उसी हिसाब से एक लिमिटेड होगा लेकिन अगर आप डिफरेंट कंपनीज में जाएंगे एक तो आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा आप रिस्क ज्यादा लेंगे आपके पास अपॉर्चुनिटी ज्यादा आएंगी और फिर एट द एंड नेटवर्क योर कनेक्शंस विल बिल्ड अप सो एनी इनिशिएटिव्स rather it is paying you or it's not paying you अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो डेफिनेटली गो फॉर इट उसका कोई नुकसान नहीं होने वाला आपकी जिंदगी में सही चले thank you so much Gazanfar for this amazing talk. Would you like to conclude everything that you have put over here कि भाई career choose करने के लिए what you should be thinking and what steps you should be taking and क्या आपको सोचना चाहिए थोड़ा सा conclude दे दें and then we can yeah. हाँ जी थैंक यू वेरी मच हाँ तो अगर इसको समराइज मैं करूँ इन टर्म्स ऑफ व्हाट कैरियर टू चूज तो उसमें सबसे पहले आ जाती है जो चीज वो ये है कि व्हाट आर यू गुड एट लाइक व्हाट डू यू लव टू डू व्हाट इज योर पैशन सो फॉलो योर पैशन दैट शुड बी योर स्टार्टिंग पॉइंट राइट नाउ अगर आप अपना कैरियर स्टार्ट कर रहे हैं या अभी अपने अर्ली डेज में हैं कैरियर के तो फाइंड दैट समथिंग दैट यू आर गुड एट and try to plan everything around that thing that you are passionate about. Then it comes to finding your trait. Okay, abhi currently, are you in a position or do you love to take risks or are you kind of a person that is more on the safe play side? तो इस चीज को थोड़ा सा आप स्टडी करें और उसके हिसाब से आपके लिए वो अपॉर्चुनिटीज थोड़ी सी और भी ज्यादा जोट डाउन होंगी जिनको आप आगे फर्दर जो है शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं मूविंग फॉरवर्ड देन इट कम्स टू योर पर्सनालिटी आर यू एन इंट्रोवर्ट पर्सन और एक्सट्रोवर्ट पर्सन किस सेटिंग के अंदर आप कंफर्टेबल हैं और फिर उस सेटिंग के हिसाब से जो है आप अपने कैरियर को प्लान करें फिर ऑब्वियसली हमने बात की आई थिंक लाइफस्टाइल की सो लाइफस्टाइल से मेरी अगेन मुराद ये कि जहाँ पे आप अभी हैं और वहाँ पे जो सीनियर्स मैनेजमेंट के लोग काम कर रहे हैं उनका क्या लाइफस्टाइल है और वो लाइफस्टाइल आपको इंस्पायर करता है कि that is something you want to see yourself doing in couple of years then probably that is the right place for you but if it's something that doesn't connect with you then maybe you can start switching towards other opportunities or start at least exploring other opportunities. Then it comes to living, that is also important. कहाँ पे आप रहना चाहते हैं? अर्ली डेज के अंदर अगर हम कैरियर की बात करें तो वहाँ पे तो इट्स मोर लाइक अ हार्ड लेबर. It doesn't really matter where you are because again you are in early professional phase. लेकिन थोड़ा सा जब आप मिड लेवल के ऊपर आते हैं तो ये चीज़ भी इम्पोर्टेंट हो जाती है कि where do you want to live. तो उसके हिसाब से अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर करें कि कहाँ पे आप सेटल डाउन करना चाह रहे हैं और उस चीज़ को आगे लेके चलें. So I think these are some of the pointers that are important when choosing any career that you are planning for. Thank you so much, Gazanfar, for all of this amazing pointers that you have given all our audience today. Thank you so much again for everyone for joining us. You can this live transmission will be saved on our Rehnumai page. If you want to get back to it anytime, you can. Thank you so much again for joining us for another week. Tomorrow we'll be again live with you with another exciting session. Details will be posted soon on our page. Thank you so much, Gulzanfar, again. And yeah, thank you so much for Thank coming you so live with much, us. And Ji, for giving me this opportunity, and I hope लोगों ने कुछ इससे सीखा होगा and they can implement those pointers in their life to get a better opportunity in their career. Thank you very much. inshallah. Thank you so much, Gulzanfar. Okay, Allah Hafiz, everyone. Allah Hafiz.